Hi everyone, I am Sagar Rathore from Aizer Barampur, and in this video we will be talking about CV कैसे बनाना है. So as you might already know, CV is quite important no matter where you're applying. अगर आप किसी internship के लिए apply कर रहे हो, कहीं पर आपको thesis चाहिए, कोई प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, CV/resume along with an SOP or LOR is quite important. And unlike LOR जो आपको कोई प्रोफेसर देता है या कोई और देता है, CV is your responsibility. SOP पर बाद में आएंगे. You can ask in the comments if you want us to review that as well and we can help you with that. लेकिन CV बनाना आपकी sole responsibility है, and what things you should keep in mind while making a CV is what exactly we will be talking about in this video. So as you can see on the screen here, I have highlighted some points that are very important, and at the end of the video I will show you one of the CV that I have made in the beginning. अब एक बात याद रखना कि CV एक hard and fast system नहीं है कि आप एक बार बना लो and you're done with it. You have to keep updating it every few weeks or few months depending on how frequent there are changes in your CV. So keeping that in mind, you have to keep making a CV again and again. तो याद रखना that it gets updated. So there are some points I would like to highlight before going on to the final example जो मैंने CV बनाया था, and I keep updating that every once in a while. So remember that it is your CV. भाई किसी और का CV नहीं है, so make it unique. Do not copy. You can try to get inspired from some other formats, but if you pinpointly copy somebody else's CV as it is and change things here and there, अगर ऐसा होता है इंसिडेंटली कि वो आदमी भी या वहीं अप्लाई कर देता है and you also apply in the same place, it might come off that your CVs are exactly the same and you might get rejected. So people can see your CV, they might not see your CV in that sense. So make it unique, be on the safer side, don't try to copy paste. Research में ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है. Don't try to copy paste, be unique. Next thing is you want to highlight your experiences, be that academic or non-academic. Now this completely depends on the kind of application you're willing to attach your CV to. अगर आप कोई एकेडमिक प्रोफाइल के लिए CV भेज रहे हैं तो हाईलाइट कीजिए वो आपकी स्किल्स या एक्सपीरियंसेस को, या फिर अगर आप किसी नॉन एकेडमिक प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नॉन टेक्निकल जॉब है, वट एवर दैट इज़, यू हैव टू टेलर योर CV अकॉर्डिंग टू दैट, और पूरा स्ट्रक्चर उसके हिसाब से चेंज होता है. बट मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर होगा अब उसकी हम बात करेंगे. दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले आता है आपका नाम, योर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस. यू कैन ऑल्सो ऐड योर पर्सनल ईमेल एड्रेस, दैट इज ऑप्शनल. नेक्स्ट थिंग इज यू वांट टू ऐड ए फ़ोन नंबर. मेरे केस में क्या हुआ था कि आई अप्लाइड फॉर माई MS thesis in Bose Institute, and I got the thesis, but the problem was the professor tried to reach me directly, so he had to then write an email to me कि please send your phone number, I would like to contact you. I saw that your phone number is not given in your CV, तो मैंने CV में फ़ोन नंबर ऐड किया अपना लेटेस्ट वाला. पुराना फ़ोन नंबर मेरा एडिट था उसमें. सो कीप योर फ़ोन नंबर अपडेटेड इन योर CV बिकॉज आप बहुत सिलेक्टेड लोगों को अपना CV भेजते हो. अपनी लिंक्डइन या रिसर्च गेट की ID वगैरह जो भी है, कीप दैट in the structure of your CV. We will see how that is in the example at the end of the video, towards the end. Add the location or affiliation. अगर आप आइजर से हैं, नाइजर से हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से या कहीं भी आप एफिलिएटेड हैं, लोकेशन, अपना एड्रेस या जो भी है वो डाल दीजिए. Next, you want to add a professional summary of 2 to 3 sentences or maybe half a paragraph where you want to highlight your research experience, your aspirations, why you're applying for this position, what your skills are, depending on whatever position you're applying for. This changes person to person और position to position also. कुछ standard websites हैं जैसे Europass, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, which have a standard CV structure. You can follow that as well. So you want to change this from person to person, right? Next, you want to add your educational details. Now this I will show how exactly you want to do that in your template. But this again changes from person to person in the sense कि आप उसका design structure कैसे रखते हैं. Mostly education details ऊपर आती हैं, and then comes your research, recent experiences. जो भी आपके recent experiences रहे हैं, ये भी मैं template में ही आपको दिखाऊंगा. You want to highlight. अब ये जो research experiences हैं, इसमें ऐसा नहीं कि पूरा राम कथा लिख देना कि I went in this month, I did this. Just highlight as a summer intern at IIT Bombay, I did this, I learned this, these are the skills I learned. This I worked on, these were the results, I presented my work, we published, whatever that is. This changes again.
So according to the position, you might want to change that. Somewhere you want to write more detail, somewhere less. Because at the end of the day, SOP जब आप लिखोगे तो वहाँ पर भी आप इसको change और modify करते रहोगे. Next thing that we want to then have in the CV is publications. If you have any publications, you highlight them accordingly. If not, leave that section out. No need to put that in the CV. ये sections आप add कर सकते हो. मैं बताऊंगा आप अगर कौन सा सॉफ्टवेयर या जो भी आप साइट यूज़ कर रहे हो CV बनाने के लिए, वहाँ ये सब सेक्शंस आप ऐड या रिमूव कर सकते हो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू ऐड एनी स्किल्स. अब ये टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, कोई NMR पे कोई काम किया है अपने समर इंटर्नशिप में, या कोई प्रोजेक्ट किया है आपने किसी लैब में, या क्रिस्टलोग्राफी, या मे बी आपने कोई डिटेक्टर पे काम किया है. कोई भी आपका कोई भी टेक्निकल स्किल है, आपने किसी कंडेंस मैटर लैब में कोई सब्सटेंस क्रिएट किया, कोई मटेरियल सिंथेसाइज किया, दीज थिंग्स यू कैन मेंशन. तो मैंने ये काम किया. नेक्स्ट कम्स इज द सॉफ्ट स्किल्स. तो ये एक ही सेक्शन के अंदर आ जाएगा स्किल्स के अंदर कि आपके क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं. C++ अगर आपने सीखा है, पाइथन आपने सीखा है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, वट एवर दैट इज़, यू राइट. कोई कोडिंग स्किल्स और हैं, R है अगर बायोलॉजी के लिए होता है, सो दैट यू कैन मेंशन. हाई एनर्जी फिजिक्स में रूट फ्रेमवर्क आपको आता है, रिवेट आता है, कोई मॉडल आपने काम किया है, AMPT, हाइजिंग, जो भी आपका सॉफ्ट स्किल है, इफ़ देयर एनी, यू ऐड दीज. नो नीड टू इलेबोरेट कि क्या है वो क्या नहीं है, जस्ट मेंशन कि मैंने मतलब मैं दिखाऊंगा भी आपको एग्जांपल में कैसे होता है. द नेक्स्ट सेक्शन दैट यू वांट टू ऐड इज अवार्ड्स/फेलोशिप. अगर आपके पास कोई अवार्ड्स है, कोई डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स हैं, या कोई आपके प्रोफाइल को हाईलाइट करने वाला आपके पास कुछ कोई फेलोशिप है, कुछ भी है, अगर आप किसी स्कॉलरशिप के अवार्डी हैं, दीज थिंग्स यू कैन मेंशन. दिस ऑल्सो आई विल शो यू. आई थिंक ये मैंने लेटेस्ट वाले में अपने ऐड नहीं किया है. लेटेस्ट वाले में ऐड किया है, बट जो मैं आपको आज अपना एग्जाम्पल दिखाऊंगा उसमें नहीं है. सो लीव इट एट दैट. बट आप लिंक्डइन वगैरह का अगर लिंक दे रहे हो, वहाँ पे मेंशन है, मे बी पीपल कैन गो एंड चेक, बट जनरली लोग नहीं करते, तो CV में मेंशन कर सकते हैं. वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज, देयर आर पीपल प्रोफेसर्स एंड ऑल, जिनके आप CV देखोगे एंड देयर लाइक 30 पेजेस लॉन्ग. डोंट डू दैट. कीप योर CV अप टू 1 to 2 पेज, बिकॉज आप पोजिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो. रादर देन शोइंग योर अकेडमिक career, you want to show your academic profile, so keep that in mind, because professors वगैरह कई बार डीन की पोजीशन या डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं. so for that they want a 30 page or 20 page CV, but you don't want to do that, so keep it up to 1 to 2 page, at most 3, ज़्यादा नहीं इससे. ठीक है. next thing in the section you want to add under skills only, या आप अलग से एक सेक्शन बना सकते हो टीचिंग रोल्स में, जहाँ आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, आपने कभी कोई साइंस कम्युनिकेशन किया, किसी आप ग्रुप का पार्ट हैं, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, कुछ भी आपके पास कुछ स्किल्स हैं, दोज थिंग्स यू कैन ऐड इन योर CV. दिस कैन शो योर टीम वर्क एबिलिटी, दिस कैन शो आप कैसे दूसरों के साथ काम करते हैं, वॉट योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर. बेसिकली यू वांट टू शो यू वांट टू शो कि मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, मुझे लोगों की सहायता भी लग सकती है. एंड you just want to say कि I am a team worker, or maybe I'm good at communication, or maybe you are good at organizing something, so you want to highlight that as well. Now this is very important. Don't do these things please. अगर मेंशन नहीं है तो फोटो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. कई बार अनप्रोफेशनल लगता है, लोग बायस्ड भी हो सकते हैं, रेसिस्ट भी हो सकते हैं, होते नहीं है, बट you don't want to trigger them in that sense, right? So don't add photos unless it is specifically mentioned somewhere. अगर वो बोले आपको फोटो ऐड करो तो करो, जनरली नहीं कोई बोलता है. नेक्स्ट इज टू कीप इट कंसाइज एंड टेक्निकल. राम कथा नहीं लिखनी है पूरी, यू वांट टू कीप इट कंसाइज एंड टेक्निकल एंड टू द पॉइंट. डोंट मेंशन टू मच जार्गन, बिकॉज देर आर केसेस जब नॉन टेक्निकल स्टाफ भी आपका CV रिव्यू कर सकता है, स्पेशली फॉर PhD इंटरव्यूज, फॉर PhD एप्लीकेशंस में भी, where non-technical staff might be reviewing your CV. So अगर आप बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन करते हो, सारे रिजल्ट्स भी मेंशन कर देते हो, so they might not understand it. However, they might send it to the next committee who might review it, जो ज़्यादा टेक्निकल है, प्रोफेसर्स हैं. But again, you want to keep it concise and somewhat to the point, right? Don't just कहानी नहीं लिखनी है, वो आप SOP में मेंशन करोगे ही वैसे भी अपने. Then keep it formal, clean and consistent. फॉर्मेट अपना पूरा सीधा होना चाहिए, नहीं कि अलाइनमेंट ख़राब है, आधी चीज़ें यहाँ आधी चीज़ें वहाँ, फॉर्मेट गलत है, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे इटैलिसाइज है. ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड डोंट स्पेशली ऐड एनी पर्सनल डिटेल्स. डोंट मेंशन कि शादी हो गई नहीं हो गई, ये सब नहीं मेंशन करना है. कीप इट प्रोफेशनल. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रूफ रीड. अपने पीयर्स को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने प्रोफेसर्स को दिखा सकते हो, अपने
सीनियर्स को दिखा सकते हो, अपने जूनियर्स को दिखा सकते हो, यू नो. सो प्रूफ रीड इट वेरी वेल. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, टेक्निकल इश्यूज नहीं होने चाहिए, ऑल दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. अब आते हैं टेम्पलेट के ऊपर. सो दिस इज वन ऑफ द टेम्पलेट ऑफ वन ऑफ द CV दैट आई हैड मेड. बहुत सारे मैंने बनाए थे, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. यू वांट टू स्टार्ट विद सच अ टेम्पलेट. अब ज़रूरी नहीं कि आप मेरी टेम्पलेट को ही कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि मैंने ये टेम्पलेट काफ़ी जगह भेज रखी है. सो यू कैन सर्च ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लेटेक, यूरोपास, जहाँ पर ये टेम्पलेट्स होती हैं. यूरोपास इज़ कॉमन, तो वो जनरली हर जगह एक्सेप्टेड होता है यूरोप में, बट दिस इज़ कॉमन फॉर इंडिया. मैंने इंडिया में जिधर भी अप्लाई किया, आई यूज द सिमिलर टेम्पलेट एंड आई लर्न लेटेक. सो यू कैन ऑल्सो लर्न दिस एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. और रिसर्च में हो, सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ लेटेक. अगर जानना है कैसे यूज़ करते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वील मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दैट एज वेल. So you want to start with the structure, starting with the name, your roll number, your degree, your department, your institute, your affiliation. ये सब शुरू करके आप अपना प्रोफाइल बता सकते हो. कई लोग इसको मेंशन करते हैं बीच में भी, बट दिस डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यू कैन लुक एट मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू पुट इट. कई बार डायरेक्ट टेम्पलेट्स भी होते हैं लेटेक पे अवेलेबल, या इंटरनेट पे कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगी, रेडिट वगैरह पे. इट्स अप टू यू. ज़्यादा बड़ा नाम की ज़रूरत भी नहीं है, दिख रहा है कौन हो तुम, मेल में तो पता ही चल जाता है. Then you want to mention on the right side or somewhere, in the corner, your phone number, your email address, your GitHub profile, your LinkedIn profile. ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप दिखाना चाहते हो कि भाई मैं इन सब पे एक्टिव हूँ. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी हियर, और दिस इज़ वेयर आई शोकेस माई वर्क. यहाँ पे अपना आप रिसर्च गेट या जो भी है अपना रिसर्च से रिलेटेड मटीरियल, लिंक, वेबसाइट जो भी है, आपकी खुद की वेबसाइट है, वो मेंशन कर सकते हो. सो नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू हैव इज़ योर एजुकेशन. यहाँ पे अपनी आप रिसेंट एजुकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, उसको ऊपर रखेंगे. You can add your CPI, कब से आपकी डिग्री शुरू हुई, and all these details as well. स्कूल एजुकेशन मेंशन कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपकी हाईएस्ट एजुकेशन, योर BSMS डिग्री है, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है. आफ्टर सम पॉइंट मे बी स्पेशली इन PhD आप मेंशन नहीं करना चाहते कि आपकी क्या स्कूल में एजुकेशन रही, क्लास 11, 12, जनरली यहाँ पे मेंशन फिर नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो मैं अभी इसको ऐड एज अ ऑप्शनल रखता हूँ. ऐड अभी कर सकते हो, बट बाद में इसको हटा देना. Next you want to add is your experiences. This is the most important part after the summary, where you want शुरू में जो आपने यहाँ पे mention किया था summary, जो इस part में नहीं, क्योंकि मैंने 2023 में बनाया था ये वाला CV, तो अभी 2025 चल रहा है, 2 साल पुराना है. But here after your summary or professional abstract या जो भी है, you want to have the most important section is the experience, where you are talking about your research experience. कहाँ पे आप winter intern थे, कहीं आप summer intern थे, कब से कब तक काम किया, कहाँ पे located था, what your project was. Keep this technical, a little technical, okay, not very broad, not very short. Highlight what you have done. My project was this, these were the results, this I learned, this I presented, we published something, I wrote a review paper. Anything that you find relevant, वो यहाँ पे mention करना है. दोनों सेक्शंस हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं. सो एक्सपीरियंसेस अगर ज़्यादा है तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो. लेटेस्ट एक्सपीरियंस को हाईएस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, और लीस्ट वाले को कम, डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज़ मोर इंपॉर्टेंट यू वांट टू हाईलाइट दैट. देन कम्स एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स. अगर आपने कहीं पे काम किया है किसी एजुकेशनल कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल मैं साइस्टा के साथ काम कर रहा था शुरू में, सो आई मेंशन दैट हियर, एंड दैट हैज़ बीन अ वेरी बिग चंक ऑफ माई लाइफ, 3-4 years, and I have mentioned that in my CV, very elaborate, whatever I've done so far. So for that, अगर आपके पास भी कुछ है, यू कैन मेंशन दैट, हाईलाइट दैट, दैट शोज़ कि आपकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपने कंट्रीब्यूट किया किसी कंपनी को या किसी प्रोजेक्ट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन को. सो दीज थिंग्स यू कैन मेंशन, बट इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर प्रेफरेंसेज आर. दिस विल चेंज फॉर यू एज वेल. So again, your responsibilities you mentioned, what you learned, what you contributed, what you did. If you published a book, mention that, whatever. So that kind of thing you put here. Next comes technical skills, what languages you know, what developer skills you have, what frameworks you know. For example, high energy में Root, Revit, Pythia, कोई model है, AMPT, for example, Hygiene, Giant, whatever. So these things you mentioned. Especially in biology, people learn R language, right? So these things you mentioned. Chemistry में भी कुछ tools होते हैं, developer tools, all these things you can mention. Then comes the part of coursework. क्या आपने courses किए, क्या आपने सीखा, all these things you, whatever courses you have learned so far. Maybe आपने कोई online course किया है तो वो भी mention कर सकते हो. This area of interest now for the latest CV template would go up instead of staying here. मैंने तब यहाँ mention किया था, मुझे पता नहीं था, I learned that later, so I mention here कि इसको ऊपर डाल दो तो ज़्यादा better रहेगा.
स्टैंडर्ड टेम्पलेट जैसे यूरोपास वगैरह में ये पहले से ही ऊपर प्रेफरेंस में होता है. देन दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं आप कमिटी का पार्ट थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अचीवमेंट, कोई इंस्टीट्यूट में कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया, ऑल दीज थिंग्स यू इफ़ यू वांट टू मेंशन यू मेंशन, इफ नॉट यू डोंट मेंशन. लास्टली अगर आप स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको मिलती हैं, सो दोज थिंग्स, स्कॉलरशिप्स, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, कोई फेलोशिप मिलती है, सो दोज थिंग्स यू मेंशन हियर एट द एंड ऑफ द CV. सो दीज थिंग्स यू कीप चेंजिंग, अपडेट करते रहना रेगुलरली, क्योंकि CV का टेम्पलेट पर्सन टू पर्सन, पोजीशन टू पोजीशन वेरी करना चाहिए. एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट ज़रूर फॉलो करो, बट उसको अपडेट करते रहो. CV बहती नदी की तरह होना चाहिए, ना कि एक पॉन्ड, रुके हुए तालाब की तरह नहीं होना चाहिए. बिकॉज एवरी पोजीशन यू अप्लाई टू, देयर माइट बी समथिंग यू वांट टू ट्वीक हियर. सो कीप इट एज अ गो सिस्टम, कि चलता रहे भाई, रुक ना जाए. ठीक है. सो बिकॉज यू वांट टू अपडेट योर प्रोफाइल एवरी वंस इन मोबाइल, को स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर होती है वो दिख जाती है, तो अपने पीयर्स को दिखाते रहना, अपने प्रोफेसर्स को भी दिखा सकते हो. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू लर्न समथिंग. कोई हेल्प चाहिए, कोई डिस्कशन चाहिए, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स. जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल. यू वांट टू रीच आउट डायरेक्टली, there is a link in the description, so you can reach out there as well. And SOP या LaTeX कैसे यूज़ करना है ये जानना है, so let us know that also in the comments, and see you in the next video. All the very best. Bye bye.